کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ جنگل بھی گاؤں کے قریب ہی تھا۔ وہ دن بھر جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بیچ کر اپنی روزی کماتا۔ اس کے دن سکون سے گزر رہے تھے۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ درخت خشک ہو چکا تھا، چنانچہ وہ اپنے کلہاڑے سے اس درخت کو کاٹنے لگا۔ ابھی اس نے درخت پر پہلی ہی ضرب لگائی تھی کہ اچانک درخت سے ایک بھیانک چیخ کی آواز آئی۔ لکڑہارا ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے درخت میں سے ایک جن نمودار ہوا۔ اس کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ اس کو دیکھ کر لکڑہارے کی چیخ نکل گئی۔ اس کی لال لال آنکھیں انگاروں کی طرح بھڑک رہی تھیں۔ اس کے کندھے پر ایک چوٹ کا نشان تھا جس میں سے ایک عجیب سا مادہ نکل رہا تھا جو شاید اس جن کا خون تھا۔ جن لکڑہارے کو دیکھ کر خوفناک آواز میں بولا، اے نادان انسان، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں برسوں سے اس درخت میں سو رہا تھا۔ آج تیری وجہ سے میری نیند ٹوٹ گئی۔ تیرے کلہاڑے سے میں زخمی بھی ہو گیا ہوں۔ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جن کی آواز ایسی تھی جیسے بادل آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم یہاں سو رہے ہو، ورنہ میں یہاں کبھی نہ آتا۔ مجھے معاف کر دو، لکڑہارا کپ کپاتی آواز میں بولا۔ جن گرجا، نہیں، نیند سے اٹھانے پر تو شاید میں تجھے معاف بھی کر دوں، لیکن تیرے کلہاڑے سے میرے کندھے پر جو چوٹ آئی ہے اس کے لیے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ میں تجھے جلا کر بھسم کر ڈالوں گا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے ایسا لا علمی میں ہوا ہے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ لکڑہارا اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ جن نے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں۔ لکڑہارا فوراً بولا، کون سی شرط؟ شرط یہ ہے کہ اگلے 3 دن تک تجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، ہر بات میں جھوٹ۔ اگر غلطی سے بھی کوئی سچی بات تیرے منہ سے نکل گئی تو میں فوراً تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ لکڑہارا یہ سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اتنی آسان شرط، یہ تو میں آسانی سے پوری کر لوں گا۔ یہ جن بھی بالکل نکما ہے، شرط دی بھی تو کون سی کہ 3 دنوں تک جھوٹ بولنا ہے۔ لکڑہارے نے مسکرا کر کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ جن نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور پھر غائب ہو گیا۔ لکڑہارا اپنی کاٹی ہوئی لکڑیاں اٹھا کر واپس گاؤں آ گیا۔ اس کی دکان کی دیوار اس کے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی دکان میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ ان 3 دنوں میں نہ جانے اسے کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اچانک اس نے دور سے دیکھا کہ حافظ صاحب اس کی دکان کی طرف چلے آ رہے تھے۔ حافظ صاحب بہت ہی شریف اور نفیس انسان تھے۔ وہ قریب آئے تو لکڑہارا اٹھ کر ان سے گرم جوشی سے ملا۔ مجھے بہادر سے کچھ کام تھا، کیا وہ گھر پر ہے؟ حافظ صاحب نے پوچھا۔ بہادر لکڑہارے کا چھوٹا بھائی تھا۔ اب بھی لکڑہارا ہاں کہنے ہی والا تھا کیونکہ بہادر گھر پر ہی تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس نے تو جن سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ چنانچہ وہ بولا، نہیں حافظ صاحب، وہ گھر پر نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے کہا، اچھا، وہ تھوڑی دیر پہلے مجھے ملا تھا اور کہہ رہا تھا کہ گھر پر جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اچھا خیر، جب وہ آئے تو اسے بتا دینا کہ میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے بتا دوں گا، وہ کسی کام سے دریا کے کنارے گیا تھا۔ لکڑہارے نے بہانہ بنا دیا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، حافظ صاحب نے کہا، اور ابھی جانے ہی والے تھے کہ اچانک بہادر کھڑکی میں نظر آیا۔ حافظ صاحب کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک گئے، پھر حیرت سے لکڑہارے کو دیکھنے لگے۔ لکڑہارا گڑبڑا گیا۔ وہ لکڑہارے کی زبان پر الفاظ ہی نہیں آ رہے تھے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہادر دریا پر گیا ہے اور گھر میں نہیں ہے، جبکہ وہ تو گھر میں ہی ہے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ حافظ صاحب کے لہجے میں خفگی تھی۔ وہ مجھے بہادر نے ہی کہا تھا کہ حافظ صاحب سے کہنا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ لکڑہارے کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے کہہ دیا، کیا کہا؟ بہادر نے ایسا کہا تھا؟ مجھے آپ دونوں سے یہ امید نہیں تھی۔ میں اتنی دور سے پیدل آیا ہوں، کم از کم میرے بڑھاپے کا تو خیال کر لیا ہوتا۔ حافظ صاحب ناراض ہو گئے۔ حافظ صاحب نے مزید کوئی بات نہ سنی اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ بہادر گھر سے نکل کر آیا اور پوچھا، یہ حافظ صاحب کیوں چلے گئے؟ انہیں میں نے بلایا تھا۔ لکڑہارا گھبرا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شام کو آ کر ملیں گے۔
अच्छा, बहादुर ने कहा और फिर वापस घर में चला गया। लकड़हारे को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ये सब बातें क्यों की। जब शाम गुजरने पर भी हाफिज साहिब ना आए तो बहादुर खुद उनके घर चला गया। फिर जब वो वापस आया तो आते ही लकड़हारे पर बरस पड़ा। आपने उन्हें मेरे बारे में झूठ क्यों बताया? आपको पता है कि आपकी इस शरारत की वजह से वो मुझसे कितना खफा है। मुझे आपसे ऐसी तवक्का ना थी। लकड़हारा शर्मिंदा सा रह गया। हाफिज साहब और बाही दोनों नाराज़ हो गए थे। लकड़हारा इस बात पर बहुत परेशान था। सारी रात इसी परेशानी में गुजर गई। अगले दिन जब लकड़हारा लकड़ियां बाजार में बेचकर वापस आ रहा था तो उसने कमाए हुए रुपयों वाली थैली जेब में डाल ली। लेकिन अभी वो थोड़ी ही आगे चला था कि उसे महसूस हुआ थैली जेब में नहीं है। उसने फौरन जेब में हाथ डाला तो ये देखकर उसके कान खता हो गए कि जेब अंदर से फटी हुई थी। उसके मुंह से निकला, ओह, वो थैली गिर तो नहीं गई। वो उसे ढूंढते ढूंढते वापस हुआ तो उसने देखा कि एक शख्स हाथ में थैली उठाए आवाज़ लगा रहा था, ये थैली किसकी है? मुझे ये रास्ते में पड़ी हुई मिली है। ये जिसकी है वो उसे वापस ले सकता है। लकड़हारा ये देखकर खुश हुआ और आगे बढ़ा। लेकिन फिर उसे फौरन ही ख्याल आया कि वो तो सच नहीं बोल सकता। लकड़हारे को आगे बढ़ता देखकर वो शख्स उसके पास आया और पूछा, क्या यह थैली आपकी है? लकड़हारे ने ना चाहते हुए भी कहा, नहीं, थैली मेरी नहीं है। मैं तो पहली बार इसे देख रहा हूँ। वह शख्स फिर आवाज़ लगाने लगा। एक और शख्स ने वह थैली अपनी बताकर उससे ले ली और चलता बना। लकड़हारे को दिल ही दिल में उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जो झूठ बोलकर उसकी थैली लेकर गया था। गुस्सा अपने झूठे पर भी आ रहा था कि जिसकी वजह से उसे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ गया था। वह दिल ही दिल में कुढ़ गया। फिर उसे याद आया कि उसे तो आज काजी की अदालत में जाना था क्योंकि उसका एक रिश्तेदार चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था और वो बिल्कुल बेकसूर था। उसे अपने रिश्तेदार के हक में गवाही देने जाना था। वो जल्दी जल्दी अदालत में पहुंचा। सबसे पहले मौजूद थे, बस उसका इंतज़ार हो रहा था। फिर उसे गवाही देने के लिए बुलाया गया। अभी वह सच बोलने ही वाला था कि उसे ख्याल आया कि वो सच तो बोल ही नहीं सकता, वरना वह जीने से भस्म कर देगा। इस ख्याल के आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। काजी साहिब उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब वो कुछ न बोला तो काजी साहिब गरज कर बोले, तुम बयान क्यों नहीं दे रहे हो? लकड़हारा सहम गया और बौखलाए हुए लहजे में बोला, हुजूर, मुझे यहाँ झूठी गवाही देने के लिए बुलाया गया है। असल में मैं चोरी मेरे अजीज़ नहीं की है। वही कसूरवार है और मुजरिम है। उसने ही डाका डाला था और उसके वारसों ने मुझे पैसे देकर झूठी गवाही देने पर आमादा किया है। ये सुनना था कि उसके रिश्तेदार आग बगोला हो गए। खुद मुलजिम का रंग भी सफ़ेद पड़ गया और लकड़हारे की झूठी गवाही पर हैरतज़दा होने के साथ साथ सख्त गुस्से में भी था। आखिर काजी साहिब ने लड़के को सज़ा सुना दी। सिपाही लड़के को ले गए। लकड़हारा खुद भी घबराया हुआ था। मुलजिम के जाने की देर थी कि लकड़हारे के अजीज़ उस पर बरस पड़े। उसे बहुत बुरा भला कहा और आखिर में सब रिश्ते नाते हमेशा के लिए तोड़कर चले गए। अगले दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि वहां से बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ था। वह जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। लकड़हारे को देखकर बादशाह ने एक सिपाही को इशारा किया तो वो लकड़हारे के पास आया और बोला, ए लकड़हारे, हमारा पानी वाला बर्तन कहीं खो गया है। बादशाह बहुत प्यासे हैं। अगर तुम्हारे पास पानी है तो बादशाह के लिए पेश करो, वो ज़रूर तुम्हें इनाम देंगे। इनाम का सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके पास पानी मौजूद था। लेकिन फिर उसे जिन का ख्याल आया तो सारी खुशी गायब हो गई। वो बोला, नहीं, मेरे पास पानी नहीं है। मैं जंगल में पानी साथ नहीं लाता। इतने में बादशाह और उसके सिपाही उसके नज़दीक आ चुके थे। लेकिन तुम्हारे इस बर्तन में क्या है? सिपाही ने उसके पानी वाले बर्तन की तरफ इशारा किया तो उसके रंग उड़ गए। सिपाही ने फौरन लपक कर वो बर्तन उठाया और बादशाह को पेश किया। बादशाह ने पानी पिया और फिर कहा, ए लकड़हारे, तुमने हमसे झूठ बोला। जानते हो इसकी सज़ा क्या है? लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी प्यास बुझी, इसलिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं। लेकिन अब तुम्हें हमारी तारीफ में कुछ अच्छी बात सुनानी होगी। ये हमारा हुक्म है। लकड़हारे ने सुन रखा था कि बादशाह को अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक है। मिजाजन बादशाह साफ दिल और नेक था, लेकिन लकड़हारा इस वक्त कुछ सच नहीं बोल सकता था। वह कपकपाती आवाज़ में बोला, हजूर वाला, आज आपके बारे में कुछ अच्छा कहूँगा तो
मेरी जान चली जाएगी और ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। आप में क्या खूबी है जो आपको अच्छा कहूँ। आपकी शक्ल इतनी भयानक है कि चुड़ैलों के बच्चे भी आपको देखकर डर जाएं। आप बिल्कुल निकम्मे और बेवकूफ़ हैं। आप में शऊर नाम की कोई चीज़ ही नहीं। ये सुनना था कि बादशाह गुस्से में आग बगोला हो गया। बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों ने लकड़हारे को इतना मारा कि उसकी तबीयत साफ़ हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां जोड़ों से अलग हो गई हों। बादशाह सिपाहियों समेत वहां से चला गया। लकड़हारा गुस्से से अपना सर पीट कर रह गया। उसे इस झूठ की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़े और अब उसको इतनी मार भी पड़ गई थी। अभी 3 दिन गुजरने में कुछ ही वक्त बाकी था कि अचानक उसके सामने वही जिन नमूदार हुआ। दिन पहले तो उसकी हालत देखकर चौंका। फिर उसने लकड़हारे से कहा, ए लकड़हारे, बता क्या तूने पूरे 3 दिनों तक झूठ बोला, और अगर नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। लकड़हारा उठ खड़ा हुआ और फौरन बोला, हाँ हाँ, मैंने पूरे 3 दिन तक झूठ बोला है और इसकी वजह से मुझे बहुत से नुकसान भी उठाने पड़े हैं। मैंने बहुत मुश्किलें झेली हैं। लेकिन फिर फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि अभी 3 दिन मुकम्मल होने में कुछ वक्त बाकी था और उसने गलती से सच बोल दिया। इस पर जिन ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और बोला, ए नादान इंसान, तूने 3 दिनों तक मुश्किलें झेली, नुकसान उठाए, लेकिन आखिर में आकर तू अपनी कम अक्ली के बायस सच बोल बैठा। अगर तू ज़रा अक्ल से काम लेता तो कोई नुकसान उठाता और ना अब मेरे हाथों मारा जाता। यह सुनकर लकड़हारे का रंग फीका पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जिन ने उस पर एक फूंक मारी और वो बेचारा लकड़हारा राख बनकर उड़ गया।